all the dignitaries in the dais, Lagu Udyog Bharati and Maharashtra units, organizers, office bearers, and also to all the industry representatives who are here. My namaskar and thank you for being here on a rainy day. And rain, not the Maharashtra, Mumbai's standards, but even worse. In spite of that, you have come here, so I'm very thankful, and it always gives me immense satisfaction to come and join the Lagu Udyog Parivar. I've been attending over the years. Lagu Udyog Bharati's All India meets and also state-wise meets, Rajasthan, Karnataka, and so on. So today I'm here on the invitation of the Maharashtra unit. We are meeting at a time when the Indian economy is coming out of the difficulties caused by COVID, caused subsequently by the global supply chain difficulties where raw materials were not moving easily as would it move normally. And subsequently again because of the Russia-Ukraine war. So, one after the other, we've never seen like this before in the recorded history of the world. One after the other, we are seeing a global scale disruption. Pandemic shut everybody down, no buying and selling, no export or imports. But after that, when the economy was trying to come out of it, after that and slightly before that also came the problem of movement of goods, shortage of containers, supply chain disruptions, from small to not so important raw material to very serious critical inputs. Then, as I said, when you thought you were getting out of that problem, you had the Russia-Ukraine war, which has brought in a sense of insecurity to the entire world on food grains, on crude, on fertilizers. So you've reached a stage where you've seen one after the other without a gap. You're not able to lift your head, not just India, the rest of the world. So we are meeting at a time when we have seen each one of them in their toughest severity. And today, we also have the news, not just today, a couple of days from before today, that India has now moved over to be the 5th rank nation from what it was 10 years ago. 11 years ago, 10 to 11 years ago, we were in the 11th position in terms of global income. And at that time, the 5th position was occupied by the United Kingdom, British Samraj ka. But within a matter of 10 years, India has moved from the 11th place to the 5th place, replacing United Kingdom. This is not at all a mean achievement. It's not an insignificant achievement. It's not an achievement which anyone can say, nay, but this, but that. No ifs and buts. It's an achievement which is purely thanks to the work, to the entrepreneurship, to the spirit, and to the untiring work of the Indian citizen. हमारे भारत की आम नागरिक इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी अगर 10 साल में
11वें नंबर से उठ करके 5वें नंबर तक 10 ही साल में पहुंचा। और इस बीच में हमें कोविड भी और सप्लाई चेन डिसरप्शन भी, रशिया यूक्रेन वॉर भी झेलना पड़ा, फिर भी हम 5वीं रैंक में पहुंचे। हम पहले ये तय कर लें हमारे अपने मन में कि कोई भी निराशाजनक वक्तव्य, कोई किसी राजनीतिक कारण कोई भी कहे, उसको हम सुनकर छोड़ना चाहिए, उससे प्रभावित होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जहां भारत की असली ताकत को और भारत की सच्ची अचीवमेंट्स को मानने को तैयार नहीं ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय है और उनको लगता है इसको मानने में मेरा राजनीति का अस्तित्व हिल जाएगा, इसलिए हम मानने को तैयार नहीं है। मगर वो ये नहीं समझ रहे कि पूरे भारतवासियों का अचीवमेंट को नकारने में आपकी पॉलिटिकल पार्टी का ऑपोजिशन को ऊंचा नहीं रख रहे हैं, बल्कि भारत देश का नीचा दिखा रही हो। इसीलिए ऐसे दिखाने वाले को उनके अपने स्थान है, वो उधर से जो भी करना चाहते हैं करने दीजिए। मगर हम भारत के असली ताकत को समझें और उसके कारण ही आज इधर पहुंचे हैं 5वीं रैंक में। और आने वाले 25 साल में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं कि हम सबका दायित्व भी है इस देश के भविष्य के लिए, इसलिए सबका साथ के साथ सबका प्रयास भी आज जरूरी है। और इस बीच में मॉर्गन स्टैनली का एक ग्लोबल रिपोर्ट है, उसके द्वारा हमें ये भी उनके आंकड़ा है, वो उनका असेसमेंट बोल रहे हैं कि बाय 2030 मतलब 7-8 इयर्स के अंदर हम शायद 28% ऑफ एशियाज ग्रोथ में, पूरे दुनिया के ग्रोथ में एशिया के ग्रोथ, और उस एशिया के ग्रोथ में भारत का हिस्सा 28% तक होगा, और ग्लोबल ग्रोथ में हमारे हिस्सा 22% तक होगा। अगर विदेश में से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस आंकड़ा बोलते हैं, इसमें हम ये सोचने लायक है कि भारत ही आज पूरे दुनिया में सब झेल रहे हैं प्रॉब्लम, यूक्रेन का, कोविड का, रिवाइवल का, सप्लाई चेन शॉर्टेज का, मगर भारत ही इन सब कठिनाइयों के झेलते हुए इसके बावजूद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज। वो 7% ग्रोथ है, 7.5% ग्रोथ है, 7.3% ग्रोथ है, वो सब एक तरफा है। और IMF और वर्ल्ड बैंक भी दुनिया के ग्रोथ को बार बार रीअसेस करते रहते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, और ग्लोबल ग्रोथ को असेसमेंट कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, रिव्यू करते जाते हैं। उस रिव्यू में हमारे हिस्सा भी रिव्यू होता है, ऊपर नीचे होते हैं, मगर इस साल का और अगले साल का उनके असेसमेंट के द्वारा ये समझ में आता है, और ये बार बार बोला जाता है कि इस साल भी और अगले साल भी भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। इसमें एक विषय हम हमारे अपने पॉलिसी और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोविड के समय हमें बार बार ये बोला जाता था कि पैसा और प्रिंट भी करो, खूब बंटवारा करो, जनता के हाथ में पैसा होना चाहिए, उनके हाथ में पैसा पहुंचाओ। हम इस सब को सुने, इन सब का उनके तरफ से वाद विवाद जो भी होता था
वो सब भी सुने, मगर भारत के इकोनॉमी जिनके हाथ में सपोर्ट तुरंत जाना है, कौन सा सपोर्ट जाना है, कैसे जाना है, और उससे उनका क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ उनका नहीं, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनसे काम लेते हैं, उनको काम देते हैं या उनके साथ काम करते हैं, इन सब को भी ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये था विषय कि जिनको मदद पहुंचना है हम पहुंचाएंगे, और एक गरीब भी एक रात को भी बिना खाए सोना नहीं चाहिए, वो भी हम मन में रखेंगे। और ऊपर से इस देश का बैकबोन जो समझा जाता है, रीढ़ की हड्डी, वो लघु उद्योग है और एमएसएमई है। इसीलिए उनको ऐसे उनके काम आने वाले स्कीम तैयार करो, उसके तहत उनको एक उनको मदद पहुंचाओ। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के घोषणा के ही समय ही, जैसे 48 आवर्स के अंदर, लॉकडाउन अनाउंस करने के 48 आवर्स के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना का घोषणा हुआ, और आज तक वो स्कीम कंटिन्यू हो रही है, जिसमें अनाज टोटली मुफ्त गरीब को पहुंचता है। उनके आमतौर पर जो रेशन मिलता है उसके ऊपर ये भी उनको मिलता है, मगर तुरंत बाद कंसल्ट करके, सभी इंडस्ट्री से बात करके, आत्मनिर्भर भारत अनाउंसमेंट के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम का घोषणा हुआ, जिसके द्वारा 3.5 लाख करोड़ का एमएसएमई के लिए स्कीम अनाउंस हुआ, और उसमें 99% सैंक्शनड अमाउंट डिस्पर्स भी हुआ, उसमें सरकार की सॉवरेन गारंटी के द्वारा। इसलिए एमएसएमई का विषय में कोरोना से पहले ही सरकार के द्वारा बहुत सारे घोषणा हुआ, जैसे आप चाहते थे डेफिनेशन बदलना, ऑन द फोन इन प्रिंसिपल अप्रूवल 60 मिनट्स के अंदर देना, और उसके बाद धीरे धीरे से हर एमएसएमई सेक्टर का पॉलिसी को रिव्यू करके एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा भी सीजीटीएमएस स्कीम, जिसमें एनपीए हुए एमएसएमईस को भी मदद देने का एक स्कीम ले आए। सो पैंडेमिक के समय पूरे के पूरे एमएसएमई को मन में रखते हुए ही मॉरेटोरियम भी ले आए, जिससे कोई एमएसएमई कोविड के कारण एनपीए ना हो। बैंक को आदेश दिया, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए लोग ने, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमेटी के द्वारा, कामत कमेटी के द्वारा लिस्ट बनाया कि इन सेक्टर्स को भी मॉरेटोरियम और इंटरेस्ट को वेव करना या उसको सरकार के सब्सिडी के द्वारा उनको बोझ हटाना, ये सब उस समय ही हुआ। और इसमें मैं कॉमन स्ट्रैंड, एक धागा, इन सब को जोड़ते हुए एक धागा अगर मैं देख रही हूँ, वो एमएसएमई है। एमएसएमई का ही नजरिया इन सभी पॉलिसी में हमने जोड़ कर लिया है। एमएसएमई के लिस्ट में हम क्या स्टार्टअप्स को जोड़ते नहीं है? जोड़ना भी चाहिए। स्टार्टअप्स को भी हम बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के द्वारा, फिस्कल कंसिडरेशंस के द्वारा एमएसएमई को जितना ध्यान में रखते हुए पॉलिसी करते हैं, उतना ही स्टार्टअप्स को भी हमने असिस्ट किया। इसीलिए आप आज देख रहे हैं भारत 3rd रैंक में है पूरे दुनिया में एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में, और उसमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तक
1.5 साल में स्टार्टअप्स में से इतने सारे ऑलरेडी यूनिकॉर्न के स्तर पर पहुंच गए, 100 से ऊपर। ये प्योरली भारत के एंटरप्रेन्योरशिप का और वो एंटरप्राइज जो क्वालिटी हम हर एक के अंदर है, जिसको पिछले 60 साल में, नियरली 50-60 years में दबाकर रखा था, because of the way we treat our businesses, because we don't trust them, and because it was under the license quota Raj, which although was removed in 1991, धीरे धीरे उसका प्रभाव आने तक you saw MSMEs and other entrepreneurial citizens of India suffering for support from government. Other than this, if you have to consider the way in which Indian economy is building up so that it can help small businesses, include small businesses, and make sure facilitation reach them, is the way in which we brought digitization. Digital entry or deepening digital access is the maximum in India compared to any other country. As a result, today, what you couldn't have accessed earlier, you're able to access at the press of a button. That digitalization is what has brought in MSMEs to achieve maximum financial inclusion. And also today, even 2 days ago when I was talking to industry, I was very clearly requesting them that due payments in due time is what is the lifeline for MSME. उनको मैं ये रिक्वेस्ट की कि हाँ, हम सब, आप भी, हम भी MSME के बारे में बार बार बात करते हैं, उनके दुख जो MSME व्यक्त करते हैं, उन सबको हम भी समझकर उनके सपोर्ट करते हैं। सरकार हर कदम उठाती है इन दुख को हटाने के लिए, और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, बार बार बहुत सारे मंत्रीगण भी उसमें सिचुएशन सुधार करने के लिए बयान देते हैं कि ड्यूज ऑफ द MSME, उनको जो पैसा समय पर मिलना चाहिए, गुड्स सेल किया, सर्विसेज सेल किया, उसका पेमेंट जो आना है वो समय पर नहीं आता। सरकार तो समाधान पोर्टल के द्वारा ये सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लगा लिया, आप सब बहुत ही उत्साह से उसमें जोड़े, फिर ये बहुत सारे बयान के बाद भी, सरकारी मंत्रीगण भी इसमें आवेदना व्यक्त करने के बाद भी, हम सरकार के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सबको बोलते हैं कि 90 डेज से अंदर आप क्लियर करो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आदेश देते हैं, मैं खुद रिव्यू भी करती हूँ, मगर इसमें सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्र सरकार चलाते CPSEs नहीं है, वो भी हैं, मगर उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स का ड्यूज भी है। स्टेट गवर्नमेंट्स का, उनके अंडर जो PSE है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका भी ड्यूज है टुवर्ड्स द MSMEs। और इससे ज़्यादा मैं समझ रही हूँ पब्लिक अरेना में जो प्राइवेट कंपनीज है, उनका भी ड्यू है। सो जब मैं 2-3 दिन पहले इंडस्ट्री से मिले, उनसे ये भी बोली कि आपके संवेदना में समझ सकती हूँ MSMEs के द्वारा, बोले भी कि MSMEs का प्रॉब्लम को हम एड्रेस करना चाहिए। उस संदर्भ में उनको मैं याद दिलाई कि सरकार ड्यूज को क्लियर करने के लिए हर कदम कोशिश करती है और सुधार होने का जगह भी है, हम करेंगे भी। PSEs को आदेश देते हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी सिर्फ उसका बाकी का बयान कंपनी रजिस्ट्रार को देना तक नहीं है। बयान दो, स्टेटमेंट ऑफ आपके बैलेंस शीट में आप जो मेंशन कर रही हो वो भी सही है, इतना बाकी है MSMEs के लिए, मगर वो स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी बोलना चाहिए कि 45 डेज के अंदर आप देंगे। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें थोड़ा आगे होना चाहिए,
जिससे एमएसएमईज का ये पेंडिंग ड्यूज लगातार वो माउंट करते होते हैं, उसको सुलझाने के लिए एक रास्ता। 30th June this year, प्रधानमंत्री जी spoke on the उद्यमी भारत प्रोग्राम। बहुत सारे विषय लघु उद्योगों के विषय में प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग में बोले, मगर एक आध विषय उसमें से मैं निकाल करके आपके सामने दोहराना चाहती हूँ। हमारी सरकार 2014 से जो 2014 ऑनवर्ड्स टू टुडे बजट में 650% इंक्रीज हुआ है बजट में एमएसएमईज के लिए। वो पिछले 7-8 साल में 650% इंक्रीज इन बजट फॉर एमएसएमई। सो उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को दूसरे एक और डेफिनेशन दिए हैं, उसको आपके सामने मैं दोहराना चाहती हूँ। MSME means maximum support to micro, small and medium enterprises. वो मैक्सिमम सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से आज तक और आने वाले अमृतकाल में भी देने वाले हैं, दिए हैं, आगे भी देंगे। एक और स्कीम है रैंप, शायद आप सबको जानकारी भी है। रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, RAMP, रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। उसके लिए 6,000 करोड़ का फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए उस स्कीम के द्वारा इंसेंटिव्स अनाउंस हुए हैं। इधर आने से पहले उधर बगल वाले कमरे में बैठ करके बात करने के समय हमारे ऑर्गेनाइजर्स के विषय में सब बात करते थे। उसमें एक्सपोर्ट के विषय में MSMEs को समर्थन देने वाले एक इश्यू एक मेंबर ने उठाया। उसमें मैं याद दिलाना चाहती हूँ, ये MSME इकोसिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए और फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स को उपयोग में आने के लिए इस साल 22-23 से रैंप का स्कीम ले आए, जिसमें इट इज वर्थ अबाउट 6,000 करोड़। आप सामने बैठे हैं माननीय सरदार जी, सो यू हैव द आंसर फॉर द इशू यू रेस्ड। फिर डिजिटल के विषय में हाउ इट हैज हेल्प्ड MSME डायरेक्टली। More than 500 crores have been transferred digitally to about 18,000 MSMEs. 18,000 MSME को 500 करोड़ digitally transfer हुआ है, and this is under the Self-Reliant India Fund, and that fund totally is 50,000 crores. Self-Reliant India Fund, which is primarily to assist in small and medium industries. उसमें already 500 crores have been transferred. You might ask, who did it go to? It has been digitally transferred to those MSMEs which require it. And more than 1,400 crores has also been released to the MSMEs. Particularly under the Self-Reliant India scheme, 1,400 crores अलग से has been given for MSMEs. MSME का एक ब्रांड बड़ा सा भारत में अगर कोई है तो वो खादी विलेज इंडस्ट्रीज, KVIC के द्वारा खादी के नाम में जो भी आइटम्स बिक जाते हैं वो सब खादी के ब्रांड में बहुत वैल्यू रखते हुए चलती है मार्केट में। पिछले 8 साल में खादी का सेल 4 गुना 4 times it has grown.
खादी इस देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उस समय से खादी के बारे में बहुत हम बात करते थे, लोग पहनते थे खादी के वस्त्र, मगर आफ्टर अ पॉइंट उसका टर्नओवर और रेवेन्यू फ्लैट हो गया था। मैं ये नहीं कहूँगी वो नीचे आ गए, मगर फ्लैट हो गया। उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से लगातार खादी विलेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिए, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि 8 साल में 4 गुना 4 times दे हैव इम्प्रूव्ड एंड ग्रोन। एंड उसके द्वारा 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार बहुत ही, पर्टिकुलरली केंद्र सरकार और उनके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सब प्रोक्योर करते हैं बहुत सारी चीज़ मार्केट से, मगर एक जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट GEM पोर्टल जो हम 2015 में प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट किए, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में थी उस समय, मुझे याद है। सरकारी हर प्रोक्योरमेंट को जेम के द्वारा करो और उसमें MSME को एक सेक्शन टोटली रिजर्व करो और उनको प्रायोरिटी दो। उस पोर्टल में हर MSME का जो चाहते हैं प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं, उसमें से सरकारी विभाग सब प्रोक्योर करते हैं। आज उस जेम का साइज इतना बढ़ गए हैं, और मैं एक्चुअली बहुत आनंद से कह सकती हूँ, टुडे यू हैव ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्रोक्योरिंग फ्रॉम इट एंड डायरेक्टली। एक मुझे उदाहरण बिल्कुल याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी एक समय कहीं एक विजिट में जाने वाले थे, अर्जेंटली कुछ चीज़ खरीदने के लिए उन्होंने सोच विचार कर रहे थे, सेक्रेटरियों को बोले, फिर उनको बोले कि जेम में जाओ, देखो कि उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। और जेम पोर्टल के द्वारा ही दूर दराज तमिलनाडु में कोई महिला उस प्रोडक्ट को बना रहे थे और वो जेम में थे, उनके द्वारा ही खरीद करके विदेश को लेके गए उस प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री जी। और इस विषय को अगले मन की बात में भी दोहराए कि इस महिला साउथ कहीं से, उनके प्रोडक्ट इतना अच्छा है और वो जेम पोर्टल में है। ऐसे छोटे छोटे विषयों के ऊपर भी ध्यान दे करके आज MSMEs को स्पेसिफिकली बेनिफिट देने के काम सरकार में हो रही है। मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे लघु उद्योग भारती स्टेट वाइज भी और नेशनल वाइज भी संपर्क में रहते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं और उनके कठिनाई बार बार ले आकर के बोलते हैं, और उसके द्वारा हम सिस्टम में, पॉलिसी में जो करेक्शंस करना है वो सब करते हैं। उस करेक्शंस के द्वारा तुरंत आपको फायदा भी मिलता है। उदाहरण के लिए, आज ग्लोबल टेंडर के द्वारा बड़ा कंपनियां उनके माल खरीदते हैं। उस ग्लोबल टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं। प्रायर एक्सपीरियंस है, आपके टर्नओवर इतना तक है, आप इतने सारे ग्लोबल कंपनियों को सप्लाई पहले कर चुके हैं क्या, ऐसे सब कंडीशन। और इन कंडीशन में MSME कहीं उस टेंडर के पास भी पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे कंडीशंस। मुझे मालूम है कम से कम 5-6 साल में डिस्कशन के बाद तुरंत उसी समय
निर्णय लिया, और उस निर्णय शायद 2018 में लागू में आया कि 200 करोड़ के नीचे जो भी टेंडर है वो ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए, और उस कंडीशन हटाने में हमारे एमएसएमई बहुत सारे उसमें शामिल होने का अपॉर्चुनिटी मिला। वो निर्णय भी हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और शायद आपको ये जानकारी भी है कि पीएलआई स्कीम्स टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए, वो सभी प्रोडक्ट्स टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भारत में करने के लिए जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें भी एप्लीकेशन जिनको अप्रूवल मिला उसमें 50%, मतलब half of all the applications approved are from MSMEs. सिर्फ इस विषय को सुनने के बाद ऐसे clap is not enough. मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे हिंदी के वजह से आपका रिएक्शन देर में हो रही है क्या? मैं इंग्लिश में बात करना बेहतर समझती हूँ। माई इंग्लिश इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट एटलीस्ट ऑडियंस रिस्पॉन्स विल बी बेटर। हिंदी में आप सो जा रहे हैं, ये महिला क्या बोल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो भाई। नो गुड। PLI, networking and communications, and also telecom products, इसका एप्लीकेशंस जितने भी आए उसमें 50% MSME और ठीक है, बारिश में आए हो, फिर ये टॉयज का प्रमोशन भी, खिलौने मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, इसका भी बहुत प्रोत्साहन सरकार ने दिया, और उसके कारण आज हमारे खिलौने विदेश को एक्सपोर्ट में जा रहा है। इसके बावजूद भी थोड़ा कम इंपोर्ट आ रहा है, मगर उन इंपोर्ट का मैंडेटरी कर गया है कि उनका सैंपल को टेस्ट करो, वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट ठीक है कि नहीं, वो कंपलसरी मैंडेटिंग बना दिया। और उन इंपोर्ट्स के ऊपर जहां बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% था, आज वो 60% तक बढ़ाया गया। इस विषय को क्यों हम इतने विस्तार से बात करना, उसका आवश्यकता क्या है? 8,366 मतलब 8,366 हिंदी, आई कांट से दैट इन हिंदी। 8366 MSME रजिस्टर्ड टॉय मैन्युफैक्चरर्स है इस देश में। सीधा हमारे कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाना और इंपोर्ट को सख्त टेस्टिंग करके अंदर ले आने के लिए मेजर्स लेना, ये सब ये 8,000 से ज़्यादा जो MSME यूनिट्स है टॉय मैन्युफैक्चरर्स, उनको मन में रखते हुए किए गए कदम है। एग्रीकल्चर में भी आज MSME बहुत उनके प्रभाव दिखा रहे हैं। बहुत विषय है बोलने के लिए, मगर उसमें मैं लार्जर एक विषय को दोहराना चाहती हूँ। अमृतकाल है, भारत के
नींव की हड्डी है एमएसएमई, और हमारे देश के इनोवेशन स्टार्टअप और इस दुनिया में पेटेंट्स भी ज़्यादा आजकल रजिस्टर हो रही है। इस माहौल में मैं मानती हूँ कि अमृत काल में हमारे देश ये 5वीं रैंक से कम 3री रैंक तक पहुँचने एब्सोल्युटली प्रॉबल। मगर उसमें बड़ा इंडस्ट्री आएगा इस देश में, बड़ा एफडीआई आएंगे इस देश में, मगर वो सब होते हुए भी अगर लघु उद्योग उनके ताकत दिखाते नहीं हैं, और ताकत दिखाने के लिए सरकार के द्वारा जितनी भी मदद देना है हम लगातार देते रहें, जैसे पहले अभी भी देते रहेंगे। मगर अगर स्किलिंग अपस्किलिंग आपके पास जो काम करते हैं उनका स्किलिंग के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, और आप भी डिजिटल वर्ल्ड में पूरे मन से अगर अपना डिजिटल वर्ल्ड को अपनाते नहीं, फिर हम आगे धीरे धीरे जाएंगे, ना कि स्पीडीली। आगे इतना रफ्तार से हम जाना है, उसके लिए आपके स्किलिंग आवश्यक है, और आप भी डिजिटल को अपनाना चाहिए। उसके लिए जितने भी असिस्टेंस चाहिए वो सरकार देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये भी है कि स्किलिंग सरकार के द्वारा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है। आप भी, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, एमएसएमईज क्लस्टर्स में उनके ही अपने ट्रेनिंग सेंटर बना करके, उनके ही अपने करिकुलम बना करके, नए जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, +2 करके निकलते हैं, उन सबको ट्रेनिंग देते हैं। सरकार उसमें शामिल होते हैं, उनको मदद देते हैं, असिस्टेंट्स उनको रिकग्नाइज करते हैं। ये स्किल सेंटर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, आप जाके ट्रेन। वो स्किल सेंटर कौन सा? आपका ही क्लस्टर में आपके एसोसिएशन के द्वारा जो ट्रेनिंग होती है वो। अगर आप ही अपने एसोसिएशन वगैरह के द्वारा ट्रेनिंग करते हैं तो तुरंत वो काम में आएगा। जो व्यक्ति उससे ट्रेनिंग करके निकलते हैं उसको एम्प्लॉय करने में आपको तुरंत जल्दी वो एडजस्ट हो जाएंगे आपके यूनिट में। इसलिए सरकार उस पॉलिसी को भी तैयार है, और बहुत सारे क्षेत्र में मुझे मालूम है कोयम्बतूर में, शायद लुधियाना में, ये क्लस्टर्स में ट्रेनिंग सेंटर जो एसोसिएशन के द्वारा चलाते हैं उन सबको सरकार मदद दे रही है। आप ऐसे जहाँ चाहिए वहाँ एसोसिएशन के द्वारा स्किलिंग में भाग लेना चाहिए। स्किलिंग आपका आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किलिंग करने में आपको तुरंत फायदा है, सरकार उसको रिकग्नाइज भी करेगी। वो एक विषय है। और डिजिटल मैंने ऑलरेडी बोल दी। मगर एक बड़ा सा एडवांटेज स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री शायद फुल्ली समझ नहीं पा रहे हैं या यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा बेस्ड रिसर्च, इंटेंसिव डेटा के द्वारा आपके सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या मार्ग है, ये सब में भी आपको बहुत ही प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का चीज़ है, चाहे आप कुछ भी सेक्टर में क्यों ना हो। उसके लिए ये Web3 का विषय है। ये हमसे ताल्लुक नहीं है, ऐसे छोड़ने लायक नहीं विषय ऐसे हैं कि यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन इट, बिकॉज लाइक जर्मन स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स, उनका साइज अलग है, फिर भी मैं कंपेयर कर रही हूँ। जल्दी जब टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करेंगे, ये ऐसे टेक्नोलॉजी जिसमें आपके पास एम्प्लॉई है उनको हटाने के लिए नहीं, वो भी रहेंगे, और उनके साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके प्रोडक्शन इंप्रूव करने का और मार्केट एक्सेस करने का, सैंपल का लाइव 3 डायमेंशन दिखाने का,
बहुत सारे ऐसे उसमें से फायदा उठा सकते हैं आप। उसके लिए एक यूनिट ट्राई करें ऐसे नहीं, आपके एसोसिएशन इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने के लिए एक टीम बनाइए। सरकार हर राज्य में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी के विषय में और डीप डेटा एनालिसिस के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही असिस्टेंस मिल रहा है राज्य स्तर पर। आप भी लघु उद्योग भारती के द्वारा सरकारों के साथ काम करना इस विषय में आपको फायदेमंद रहेगा। एसोसिएशन के द्वारा ऐसे लिंक रहकर वेब3 का बेनिफिट आप उठाएंगे तो हर यूनिट में वर्कर को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बिल्कुल जितना वर्कर है वो रखो और भी रखो, मगर आपके एफिशिएंसी बढ़ाने में ये सब टेक्नोलॉजी आपको उपयोग में आएगा। मैं स्किलिंग और ये विषय के ऊपर टेक्नोलॉजी का अपनाने के विषय के ऊपर आपको विनती कर रही हूँ कि ये नेक्स्ट 25 इयर्स में हमारे इकोनॉमी डेवलप करने का रफ्तार तेजी करने के लिए ये दो विषय एकदम काम में आएगा। और मैं मानती हूँ उसका सीधा प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट एमएसएमई के ऊपर ही होगा। बड़े इंडस्ट्री तो कैसे भी मशीन रखते हैं, मगर एमएसएमई डिजिटाइज करो, एमएसएमई बेटर स्किल लो, एमएसएमई बेटर डेटा एनालिसिस करो और टेक्नोलॉजी को उपयोग करो विदाउट अपसेटिंग, आपके आज के फॉर्मुलेशन को अपसेट ना करते हुए ये तीनों करो, अमृतकाल आपका ही होगा। आज आपके साथ थोड़ा हमारे विषय विचार आपके सामने रखने का मौका दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। और इतने बड़े संख्या में बारिश के बावजूद भी आप पहुंचे, आपके लिए धन्यवाद। भारत माता की। थैंक यू मैम।